Student, this topic it belongs to physics, and in this topic we have seen the Coulomb's law of electrostatics. This is defined by the French physicist Charles Augustin Coulomb in 1785 experimentally. It measured the electric force between the small charges, and this is defined by the using torsion balance, and he gave a formula for this electric force, and this is same as the Newton's law of Newton's law of universal gravitation in mechanics. According to this, Coulomb stated that the force of attraction or repulsion between two stationary point charges is directly proportional to the product of the magnitude of their two charges and inversely proportional to the square of distance between them. मीन्स इस कहने का क्या तात्पर्य कुलाम का? कुलाम ये कहता है कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है या रिपल्सन, दोनों कंडीशन से, ये ज़रूरी नहीं है कि दो चार्जेस के बीच केवल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही लग रहा हो, रिपल्सन भी लग सकता है। जैसा कि पीछे हमने देखा था कि सेम लाइक चार्जेस के बीच अट्रैक्शन का केस और अनलाइक चार्जेस के बीच रिपल्सन का केस होता है। तो उसने कुलाम्स ने एकदम क्लियर कंडीशन ये बताए थे कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन दोनों की कंडीशंस को ये एक्सप्लेन किया था। अतः इसके अंतर्गत उसने कहा कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो चाहे रिपल्सन हो, दो स्टेशनरी पॉइंट चार्ज के बीच दोनों कंडीशंस पर यह जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा या रिपल्सन होगा ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ देयर टू चार्जेस, मतलब चार्जेस के जो मैग्नीट्यूड्स हैं उनके प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा उसके स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, यानी उनके बीच की जो दूरी है उसके स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इसको हम एक फिगर के माध्यम से समझते हैं। सपोज करते हैं कि दो पॉइंट चार्जेस Q1 और Q2 हैं, r डिस्टेंस से सेपरेट हो रहे हैं। तो ऐसी कंडीशंस में क्या हो? इफ़ टू चार्जेस आर Q1 and Q2 आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस r, देन द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन r रिपल्सन विच आर generated between these charges is suppose that it is capital F. According to Coulomb's law, it is directly proportional to the magnitudes of product of their charges and inversely proportional to the square of distance between them. In combined case, both are written as F is directly proportional to Q1 Q2 upon r square. So F is equals to, taken as proportionality constant, K Q1 Q2 upon r square, where K is constant of proportionality, which is called electrostatic constant. Which is depend the value of K, or which is depend on the nature of medium between two charges and system of units chosen to the measure force. मतलब कहने का कि फोर्स किस पे प्रोपोर्शनल होगा। फिर से एक बार देखते हैं कि अगर मान लीजिए सपोज करते हैं कि Q1 Q2 दो चार्जेस हैं यूनिट कंडीशंस पे जिनके बीच की सेपरेशन डिस्टेंस r है, और कंडीशन क्या है कि दो चार्जेस, अब इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशंस या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कुलाम की कंडीशन या कुलाम के इलेक्ट्रोस्टैटिक लॉ के अंतर्गत हम जानते हैं फोर्स जो होता है इसके अंतर्गत लगने वाला जो रिपल्सिव फोर्स है चाहे अट्रैक्टिव फोर्स है, दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उन चार्जेस यूनिट चार्जेस के मैग्नीट्यूड प्रोडक्ट के मैग्नीट्यूड के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है उनके बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के। सो F is directly proportional to magnitude of Q1 Q2 and inversely proportional to the 1 upon
inversely proportional of r square. So F is equal to q1 q2 upon r square. So F is equal to k q1 q2 upon r square, where k is a electrostatic force constant when two charges are in free space. Then value of k is when two charges are located in free space. So value of k is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught, where epsilon naught is, what is this? This is permittivity. This epsilon naught is called permittivity. Permittivity of free space. It is called epsilon naught is the permittivity of free space. Then value of k is, so k is constant, so its value is equals to 9 into 10 power 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर. ठीक है, ये इसकी यूनिट होती है, कांस्टेंट की वैल्यू होती है. अब यहाँ समस्या ये आती है कि ये न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर आया कैसे. तो इसको निकालने के लिए आप क्या करेंगे, ये ज़रा वर्क कंडीशन समझिए कि F जो यहाँ पे है फोर्स, F इज इक्वल टू के q1 q2 अपॉन r स्क्वायर, इसको इस तरफ उठा के लेके जाइए. तो फोर्स की यूनिट न्यूटन, आर स्क्वायर मतलब डिस्टेंस स्क्वायर यानी मीटर स्क्वायर. अब इसके अपान में q1 q2 होगा, तो q1 मतलब चार्ज, चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलाम, और फिर कूलाम, कूलाम इंटू कूलाम यानी कूलाम स्क्वायर. तो क्या हो जाएगा, न्यूटन गुणे मीटर स्क्वायर बटे कूलाम स्क्वायर. दिस इज न्यूटन है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर. सो दिस पुट इन प्लेस ऑफ दिस. सो F इज इक्वल टू 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 upon r square. This is the derivational case of Coulomb's law of electrostatic force. अब बात करते हैं यूनिट ऑफ चार्ज की. जैसा कि हम जानते हैं SI यूनिट ऑफ चार्ज क्या होता है, कूलाम होता है. बट कंडीशन हम इसको कैसे डिफाइन करते हैं कि वो एक कूलाम, मान लीजिए आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाए व्हाट इज़ 1 कूलाम, तो आप 1 कूलाम कैसे डिफाइन करेंगे. तो यहाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशंस पे 1 कूलाम को कैसे डिफाइन करना, ये हम आपको बताएंगे. हम सपोज करेंगे कि मान लेते हैं कि Q1 और Q2 का मान ये आपका 1 कूलाम के बराबर है, और आपकी जो रेडियस है यानी इनके बीच की सेपरेशन डिस्टेंस है वो कितनी है, 1 मीटर है. तो हम जानते हैं F इज इक्वल टू क्या होता है, 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 अपान r स्क्वायर. सो these values substituted in this case. So F is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught into 1 upon 1 square. Then F is equal to क्या आ गया, 1 upon 4 pi epsilon naught, जिसकी वैल्यू कितने के बराबर है, 9 into 10 power 9 के बराबर है. अब चूँकि फोर्स के लिए है ये, इसलिए इतना न्यूटन हो गया. मतलब कहने का कि अगर एक कूलाम की बात की जाए, हमने कितना चार्ज लिया है, 1 कूलाम, तो Q1 Q2 दोनों की वैल्यू सेम है. इसका मतलब 1 कूलाम अगर अमाउंट की रिस्पेक्ट में रखा जाए तो 1 कूलाम अमाउंट चार्ज का वह केस है जैसी कंडीशंस में, ऐसी जब वह एक कूलाम के दूसरे चार्ज को 9 into 10 power 9 न्यूटन फोर्स लगा के क्या कर सके, रिपल कर सके या अट्रैक्ट कर सके. लेकिन ये कब होगा, जब वो वैक्यूम में रखे हों, क्योंकि यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट की केस फ्री स्पेस की कंडीशंस को डिफाइन करता है. मतलब इन सेम कंडीशन 1 कूलाम इज दैट अमाउंट ऑफ चार्ज दैट रिपल एन इक्वल एंड सिमिलर चार्ज with a force of 10 power 9 Newton
but one condition is compulsory. It plays in vacuum at a distance of 1 meter from it. It is compulsory condition for this.